So, Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome, all of you, in this 1 hour awareness session of IMS Integrated Management System. So, thank you very much, first of all, for joining us on time. We are starting our session. It's a 1 hour session in which we are trying to explain you the benefits of IMS Integrated Management System, the what is integrated management system, and how we can implement the integrated management system in our company, and how this particular standard will add a value in our personal and professional goals. So first of all, let me introduce myself. My name is Afaq Ahmed. By qualification, I'm MBA, a professional auditor and trainer, almost 12 years of experience, conducting more than 250 trainings of different standard, including ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, and information security and other standards. So overall, I have 12 years of experience in auditing and training. Apart from auditing and training, I'm also a visiting faculty lecturer in different universities in Pakistan. So this is my small introduction, and I would like to request you all to please introduce yourself one by one so that I can understand who are with us. One by one, if we can introduce ourselves. I request you to please, yes, yes, Sayyid Muhammad Ali. Let's start our session. Sir, I'm a administration professional, putting Okay, on almost 25 to 26 years of service. Previously, I was working with FFC. Now I'm okay, working with Interloop Textile, mashallah. uh, and I have a taste for learning the safety courses. Recently, I've passed my NABOSH IGC. Mashallah. Apart from this, I have done HABC fire safety, and I have a experience of almost 7 to 8 years of fire safety. Uh, Perfect. yeah. Thank you very much, Sayyid Muhammad Ali. बहुत शुक्रिया. Yes, My name any, is my name is Hamad, and yes. I have done BBA in marketing. Currently, I'm working with Neatel Private Limited as a marketing executive, and I cleared my NIPOSH and ISO standard 9001, 45001, sorry, OHSMS, and definitely it's my profession. मतलब मेरे I want to learn this. This is why I'm here. Thank you. Thank you very much. Yes. Next, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हमें पता चले कौन कौन हमारे साथ मौजूद है. Assalamualaikum. My name is Fahad Uzair. I'm quality assurance manager in construction field from Saudi Arabia. All right, Fahad, have you attended any previous training? Yes, I have ISO 17025, Okay. ISO 9001 2015, and another awareness certifications about ISO implementation. I already attended. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Anyone else? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Myself Ghulam Abbas. I am working as an architect and engineer in Riyadh Metro project from 2015 to now. I have completed QMS 9001 2015 from your GSE department, and Mashallah. I want to learn more about you. For that reason, I am here. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Anyone else? Myself, Mohammed Akmal from Saudi Arabia, working as a quality engineer in technology FMC. Now I joined the group. I want to learn more. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum My assalam. name is Umar Farooq, and I am from Abu Dhabi.
and currently I'm working with CPAC, and my job title is HSC officer, and I have more than 6 years of experience in construction and oil and gas. Thank you. Thank you. Yes, अपना इंट्रोडक्शन कराना होगा आपको पहले. Assalamu alaikum. Yes. वालेकुम Hello, अस्सलाम. my name is Mia Saad. I have just recently completed IGC NIBOSH, and I have ISO 9001, 45001, and 14001. I have about 4 years of experience with auditing, as well as over 10 years of experience with health and safety and environment. I also have an MSc in environment, health and safety from UK. Perfect. Thank you. Very warm welcome. Yes, next. हाँ जी. We have so many people who has not introduced themselves. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहानुद्दीन है और मैं सऊदी अरब या तबूक न्यूम सिटी में काम करता हूँ अल्फनार कंपनी के साथ एज अ सेफ्टी ऑफिसर, और टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस है. Thank you, Burhan. Thank you so much. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. You hear me, sir? I think Mr. Fark face any internet connection disturbance. I will contact her. His, Assalamu alaikum. जी यासिर भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा. No. जी यासिर इकबाल सर का इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है. मैंने अभी कांटेक्ट किया, सर आ गए हैं. Okay. All right. Yes, sorry. तो मेरी तरफ से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी. Now I am back. Yes. कहाँ पे थे हम? कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा था अपने आप को? सर मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ. जी, यासिर इकबाल साहब. Assalamu alaikum to all of you. My name is Jasir Iqbal, and I have 10 years of experience in as HSC. And currently, I'm working in Sohar Star Company in Sohar, especially in Sohar, which is the state of Oman. And I already did my NIBOSH IGC, and we already attend the ISO 45001 session, which is inshallah very soon will be conducting exam. So right now I'm attending this session, which will give me more support and enhance my future furthermore. Thank you. Thank you very much. Thank you, Yasin Iqbal साहब. Good to see you. Welcome, Yes, sir. Mr. Fida. Mohammed Fida. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fida. I'm from Peshawar, but currently I'm working here in Qatar as a safety officer. So I have 5 year experience as a safety officer here in Qatar. I have done my qualification as Master of Science, and also I have DI 3 years diploma with NIBOSH and different other safety certificates. Thank you. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. This is Atiku Rahman, sir. जी, अतीकुर रहमान Can साहब. you hear me? Yeah, sir. we can hear you. Yeah. Yes. Basically, I am from Pakistan, but currently I'm working with Sino-Hydro at Aramco project as a Dashman inspector. I have done my ISO 9001-2015 in 2017, and I'm very thankful to Mr. Wasim who referred for this certification. And I'm honored that all the team is here and we joined this group. Thank you very much. Welcome. Perfect. Yes.
Anyone else? इंट्रोड्यूस की करवाइएगा प्लीज अपने आप को वन बाय वन. Yes, I request everyone who can open the camera can please open the camera. Yes, उमर अहमद साहब आपका इंट्रोडक्शन हो गया? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर अहमद है। मैं अबू धाबी में होता हूँ। मैं यहाँ पे एज अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में होता हूँ, डिप्टी टेक्निकल मैनेजर। और मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 16 ईयर्स का है। 2020 में मैंने ISO 17025 किया था और अभी 2025 में मैंने ISO 9001 किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू. थैंक यू सर। तो यस, गुलाम अब्बास साहब आपका इंट्रोडक्शन हो गया? जी सर, बिल्कुल हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू. वसीम अहमद साहब. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं ऑलरेडी सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ सीनियर इंस्पेक्शन इंजीनियर ऑयल गैस फर्म में। इसके अलावा मेरा क्वालिटी ऑडिट्स के हवाले से भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने ये तीनों लीड ऑडिटर ISO 9001, 1400, 14001 में भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और इसके अलावा सिग्मा येलो ग्रीन बेल्ट सर्टिफाई हूँ और इसके अलावा मेरी जो जॉब प्रोफेशन और क्वालिटी से रिलेटेड है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. सुलेमान साहब आपका इंट्रोडक्शन हो गया? नहीं सर, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैंने UT पेशावर से केमिकल इंजीनियरिंग की है और करंटली सर मैं अबू धाबी में काम कर रहा हूँ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में एज अ केमिकल इंजीनियर एंड क्वालिटी मैनेजर। और ISO 17025 और 9001 की सर्टिफिकेशन की है सर। थैंक यू सो मच. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग देख के, आप सबके एंथुसियाज्म को देख के बहुत खुशी हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर You're welcome, sir. एंथुसियाज्म. या You're प्लीज welcome, प्लीज. sir. सो कोशिश यही है कि इस 1 आवर के सेशन में मैक्सिमम हम बात कर सकें. वो तमाम लोग जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है उनके लिए बताना चाहूँगा, मेरा नाम आफाक अहमद है. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योर माइक. If you want to add something, your input will be highly valuable for us. Just raise your hand and unmute yourself and ask the question. My name is Afaq Ahmed, and by qualification, I'm MBA, an auditor and trainer, and certified trainer for ISO 9001, 14001, and 45001. Conducted more than 250 training of different standard. Altogether, I have 34 certification of international quality, safety, environment, and conducted more than 1,000 audit. And in this industry since 2014, previously working with SGS Pakistan and Telenor Pakistan and Unilever Pakistan. So छोटी सी जर्नी है जो कि क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. आज भी पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ऑडिट्स कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग्स करा रहा होता हूँ, जिसमें डिफरेंट एक्रेडिशंस की शामिल है. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन जरूर है. कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और आप सिर्फ सुनते रहेंगे. आई होप लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. इवन इफ यू कैन, if anyone who is not understanding the Urdu, they can ask me. We can conduct this in English as well. Let me know what's your opinion on that. इट्स ओके सर, बाइलिंगुअल जैसे भी आपको सूट करते हो. नो Perfect, no इश्यूज issues सर, at यू all. विल कंटिन्यू। Perfect, no issues at all. So after the introduction, one of my favorite quote in front of you is, learning is not an spectator sports. If you want to learn something, so the next 45 minutes when I will be speaking, you need to be in the ground. You need to learn something. And if you have any question, you can write during the course and ask. In the last, we will be having a Q&A session in which you can ask as much as we can, and we will this awareness session is basically we arranged to provide you the best the best view of ISO standard, what is ISO standard and why ISO standard is important for our career growth. So this particular standard is basically related to quality, safety, environment. But tell me one thing, that
What is ISO? Have you heard about ISO? Yes, it's an international standard organization. International Standard Organization. Yes, ISO is basically International Organization for Standardization. It's a standard making body which evaluates the need and expectation of industry throughout the world, and then they prepare the standard for us. काम Excuse ISO me, को sir. जो ISO Excuse me, का sir. This is Kashif, sir. जी काशिफ महमूद साहब. Sir, I need 10 minutes. I will join back because they are prayer time. Okay. Sure, no problem. You can disconnect Not and you issue. can rejoin. No problem. Yeah. Okay. Thank you. सो आईएसओ का काम स्टैंडर्ड बनाना है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स का बनाना है. पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया ने ये फील किया कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स अलग थे. आई मीन जब हम जापान में जाते थे तो वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन एक ड्यूरेबिलिटी के तौर पे सामने आती थी. यानी आज भी जब भी हम whenever we will trying to buy any product, we will prefer to buy a product from Japan. Why? Because the durability. When we go towards European side, they work on the innovations. Then we come from Asian and other side, they are basically far behind the innovation and durability. So it was a need of the moment कि एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशंस को ये बता सकें कि स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए काम कैसे किया जा सकता है. तो 1947 में यानी जिस साल पाकिस्तान वजूद में आया, सेम ईयर देयर वाज अ कंपनी, देयर वाज अ एनजीओ, यू कैन से दैट, coming to being, and that is ISO, International Organization for Standardization. What ISO did? ISO ने एक प्लेटफॉर्म दिया पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स को कि वो वहां पर आए, बैठे, बात करें, एक दूसरे की इंडस्ट्री के बारे में समझें और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को बनाएं. ये देखें कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकते हैं. और आज आईएसओ के तकरीबन मोर देन 25,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं. आज हर इंडस्ट्री में हर एक्टिविटी से रिलेटेड आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं. देन वी हैव आईएसओ के जो बहुत मशहूर स्टैंडर्ड है, इसमें आईएसओ 9000 है, आईएसओ 14000 है, आईएसओ 45000 है. सो लेट्स स्टार्ट विद 9000. एंड यहाँ पे मैं एक चीज आपको कंफर्म करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि बेसिकली व्हाट इज 9000. सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9000 क्या है, या ये नंबर्स कैसे दिए जा रहे होते हैं आईएसओ में. नंबर्स इस सेंस में दिए जा रहे होते हैं कि आईएसओ ने हर स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है. जैसे कि आईएसओ 9000 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001 फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आईएसओ 45001 फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी. हर स्टैंडर्ड का नाम है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ दुनिया में दूसरे भी इदारे हैं जो कि स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं. बट जब भी हम 9000 पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये आईएसओ का स्टैंडर्ड है. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी कि जिसमें मैं आपसे सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड को समझाऊंगा. बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज क्वालिटी. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू क्वालिटी, सो हाउ वुड यू डिफाइन क्वालिटी? I mean, if you have paper and pen, you can write it, the definition of quality, which is you. बेसिकली सर क्वालिटी जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट की आप कह लें कि जी जो डिजायर्ड फॉर्म है उसको आप क्वालिटी कहते हैं. कि जो एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है उसकी डिजायर्ड फॉर्म प्रोडक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसका एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया है कि इससे नीचे नहीं होनी चाहिए और बाकी तो स्काई इज द लिमिट. वो एक क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड जो बार है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी. सर We कस्टमर can की define, सेटिस्फेक्शन we जो can do client certification. One by one. Yes. Client certification, the client requirement. Client requirement. Okay. Yes. सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो जिस पे कस्टमर जो होता है, जो जिस पे वो कहे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और जो उसको इत्मीनान हासिल हो, वो उसकी क्वालिटी है किसी भी चीज़ के हवाले से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. Okay. Their quality mean to provide a product defective, without defects. Without defect. Yes. Okay. Yes. Anyone else would like to share about what is quality?
सर वो प्रोडक्ट मतलब सर्टिफाइड हो और उसका मतलब एक ड्यूरेबल हो और उसका एक्सटेंडर हो, हम उसके क्वालिटी को चेक करते हैं। मतलब सर्टिफाइड उसकी ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन Okay, हम उसको चेक durability कर is, लेते हैं। yes, makes sense, makes sense. Sir, quality is the requirements of your customers. That's it. Perfect. Quality is basically the requirement of your customers. Perfect. Makes sense. Makes sense. Okay. Anyone Quality else? maintain the standard. An Quality improvement in maintain the product quality is like quality. Means the standard of something as measured against other things of similar kind. a system of maintaining standard in manufactured product by testing a sample of against the specification of quality. The quality is a characteristics of anything that make it valuable. That make it valuable. Perfect. Very good. Yes. Quality is can be defined What is quality, guys? to achieve the product as per the project, as per specification of client. Quality is project specification and product specification limit. Okay. Good. Yes. Anyone else? What is quality? बहुत सारे लोग हैं Yes. लेकिन input नहीं दे रहे. Customer Why नहीं कर रहे? expectation. Standard, Not hesitate. the maintaining of the standard is like a quality. If we will maintain anything as per standard, we will say it's like quality. Okay. Good. Customer expectation, Makes sense. requirement, and industry standards. Very good. So quality is basically anything that is fitness for use. जैसे आज हमारे मुख्तलिफ नैरेटिव हैं क्वालिटी के हवाले से. सेम वी हैव अ डिफरेंट नैरेटिव्स in back of the areas. I mean, in the early 90s, we have different opinions related to the quality. इसी चीज को सामने रखते हुए आईएसओ ने सबसे पहले जिस चीज पे काम किया वो एक स्टैंडर्ड था जिसे आईएसओ 14001, आईएसओ 9001 और आईएसओ 45001 कहा गया. तो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स में जो सबसे अहम चीज थी वो इस चीज को सामने रखना था कि पूरी दुनिया से लोगों को शामिल किया जाए इसमें, ताकि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सकें जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो. सो आईएसओ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आईएसओ का इस इदारे में प्रोफेशनल आईएसओ स्टैंडर्ड्स आपकी जो वर्थ है वो 140 कंट्रीज में है. देखिए आईएसओ के जब ऑडिट्स होते हैं वो तो एक दिन या 2 दिन के होते हैं, यानी बहुत मैक्सिमम बहुत बड़ी कंपनी होगी तो 7 डेज का ऑडिट होगा. बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द डेज? रेस्ट ऑफ द डेज में क्या करना है? रेस्ट ऑफ द डेज में आप जैसे लोग ही चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. यानी मैं इसको इस तरह बयान करता हूं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड को जिंदा रखना होता है और इस जिंदा रखने के लिए वी नीड टू इम्प्लीमेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स. फॉर दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट आईएसओ स्टैंडर्ड. फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करती है. वरना होता क्या है कि जब आईएसओ का ऑडिट्स हो जाते हैं एवरीवन इज रिलैक्स, चलें जी आईएसओ का ऑडिट हो गया अब अपने हिसाब से काम करना है. नो, अपने हिसाब से काम नहीं करना, आईएसओ की रिक्वायरमेंट्स पे काम करना है. तो काफी लोग हम मुझसे कांटेक्ट करते हैं और हमारी टीम जीएससी से कांटेक्ट करते हैं और ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि किस तरीके से हम आईएसओ की कंसल्टेंसी करेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे और इसकी कोई चेकलिस्ट दे दें, कोई शॉर्टकट दे दें. तो लेट मी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो चेकलिस्ट फॉर आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन. देयर इज अ स्टैंडर्ड्स. देखें अगर आईएसओ ने चेकलिस्ट के जरिए ही इम्प्लीमेंटेशन करनी थी तो वो चेकलिस्ट बनाती, लेकिन नहीं, आईएसओ ने स्टैंडर्ड्स बनाए. सो देयर इज अ स्टैंडर्ड जो कि आईएसओ 9001, 14000 और आईएसओ के तमाम तमाम जो
स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्लॉजेस हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? I request you guys once again to please mute yourself when you want to say anything. आप उस पर अनम्यूट कर लीजिएगा, वरना जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं वो डिस्टर्ब होंगे इससे। ठीक है, या फिर आप ड्यूरिंग द कोर्स कोई सवाल करना चाह रहे हो तो चैट बॉक्स मौजूद है, हमारी टीम चैट बॉक्स देख रही है, आप वहां पर अपना सवाल लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं बात कर रहा था आईएसओ स्टैंडर्ड्स की। दानिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दानिश सिद्दीकी, आप यू जस्ट रेज योर हैंड। बस ही करो सर। और Mia Saab, you are the host right now, I think so. और सर ना करें। Mia sir, please carry on. सर मैं सॉरी आई गाइस, एम इन ऑब्जर्वेमेंट। इंटरनेट का इशू है, आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी ये चल होती है। और जब भी कोई अच्छा काम करो ना तो इंटरनेट फौरन कहता है अच्छा काम नहीं करना भाई, लोगों को इम्प्रूव करवाना है ना, नहीं करना। तो अभी मूवी देख रहे होते हैं तो बिल्कुल भी इंटरनेट लैगिंग नहीं करता। दिस इज अ रियलिटी। सो इन सब चैलेंजेस से मिल बढ़ जिसे कहते हैं सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड्स कहते हैं यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस को। यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं दोस्तों? कि हमारी कंपनी अगर आईएसओ स्टैंडर्ड्स पे को इम्प्लीमेंट करती है तो दुनिया में कहीं पे भी मौजूद होती है, उसे इक्वेलेंस नैरेटिव से देखा जा रहा होता है। ये इंप्रेशन आता है कि इफ अ कंपनी इज अप्लाई आईएसओ स्टैंडर्ड इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी रूल एंड रेगुलेशन के तौर पे चल रही है। मैं आपको बता रहा था कि आपसे कुछ साल पहले आईएसओ के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं होती थी। हर कंपनी में कुछ कंसल्टेंट्स होते थे, वो आते थे आईएसओ की इम्प्लीमेंटेशन करते थे और चले जाते थे। जब तक कंसल्टेंट काम करते रहते थे कंपनी में कभी जरूरत पेश नहीं आती थी किसी चीज की। वंस कंसल्टेंट लीव, मैनेजमेंट सिस्टम डिमोलिश। व्हाई? बिकॉज जो नॉलेज कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो देते, या तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी। नाउ अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग्स कराना शुरू कर दी। बहुत अच्छे मुस्तनद इदारे आ गए हैं जो कि अथेंटिक इदारे हैं, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करते हैं, और ताकि लोगों एम्पावर हो सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अब इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए हैं कि वो अपने लोगों को ट्रेनिंग्स कराएं। कमिंग बैक टूवर्ड्स द हाँ, तो हाँ, हाँ, वही करना भी। Mia Saab, अस्सलामुअलैकुम सर। Why no sound? Mia Saab, what is 9001 certificate?
अभी सर बताएंगे ना आपको व्हाट इज 9000। सर प्लीज आप समझाना स्टार्ट करें यहाँ से, आई वुड सजेस्ट। अभी सर आ जाएंगे। सॉरी गाइस, वन सेकेंड। बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं और हर स्टैंडर्ड अपने अंदर एक पूरा समंदर लिए बैठा है। स्टैंडर्ड्स क्या हैं? यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस के तमाम कंपनीज फॉलोइंग सेम प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अचीव द बेनिफिट ऑफ आईएसओ फ्रॉम द आईएसओ 9014 एंड 45। इस वक्त आईएसओ के तकरीबन 25,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं। हर you can say that every organization does they have the ISO standards, और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि आईएसओ की नॉलेज को समझें, आईएसओ की स्टैंडर्ड्स को समझें। बस सवाल यह है कि आईएसओ की नॉलेज को समझने के लिए काम क्या करना है और क्या रिक्वायरमेंट क्या है। तो देर आर 10 क्लॉजेस। ये 10 क्लॉजेस हैं स्टैंडर्ड्स की जो कि आप आईएसओ के स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज बाय रिक्वायरमेंट, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आईएसओ का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करते हैं। तो आईएसओ का सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने हासिल नहीं करना होता, अर्न करना होता है। जैसे मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको अर्न करना होगा। अर्न करने से मुराद ये कि आपने लर्निंग करनी होगी। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू विल अर्न समथिंग। सो आपने लर्न करना होगा, और लर्न किस तरह करना है? आपने टाइम, एफर्ट और एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी है, आइडेंटिफाई करना है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड को सीखना है। सो देर आर 10 क्लॉजेस, 10 ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आईएसओ की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रही होती हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं आईएसओ की स्टैंडर्ड को, तो स्टार्टिंग 1 2 3 दीज आर नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस। ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस हैं। ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस वो क्लॉजेस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन में मदद देती हैं। यानी नॉन ऑडिटेबल क्लॉज कौन सी हैं? 1 2 and 3। 1 इज स्कोप, 2 इज नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड 3 इज टर्म्स एंड डेफिनेशंस। राइट? स्कोप इज बेसिकली द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट। बाउंड्रीज, हर स्टैंडर्ड की अपनी एक बाउंड्री है। यानी जब आप आईएसओ 9001 इंप्लीमेंट करते हैं तो बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करना होंगी। बाउंड्रीज क्या है? कहाँ से स्टैंडर्ड शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड हैं, कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इंक्लूड नहीं है। उसकी वजह यह कि जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट करने। देन नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। जब भी हम आईएसओ की स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस जो है वो बहुत अहम होते हैं। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस आर दोस रेफरेंसेस कि जब स्टैंडर्ड बनता है तो उसमें उसे बनाने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगती हैं। जो स्टैंडर्ड की कोर इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 10 तक होती है। यानी क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होती है इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्रूवमेंट 10 तक इम्प्रूवमेंट है। पर अच्छी चीज ये है कि आईएसओ के तमाम स्टैंडर्ड अब इस वक्त यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि चाहे 9 14 45 कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, और नंबर ऑफ क्लॉजेस सेम है। नंबर, इससे फायदा आपको ये होता है कि नंबर ऑफ क्लॉजेस, इवन नेम ऑफ द क्लॉजेस भी सेम है। राइट? इससे आपको फायदा ये होता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें तो बाकी स्टैंडर्ड आपके लिए आसान हो जाते हैं, बाकी स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, और बाकी स्टैंडर्ड्स को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ सर प्रोस्पेक्टिव। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज पूछें। सर ये जो क्लॉज 10 है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इसमें एक पॉलिसी आती है CQI की, कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। सर मुझे तो नहीं आती है क्लॉज 10 में कंटिन्यूस कोई पॉलिसी है। आप इस स्टैंडर्ड अच्छा, की बात करें, नहीं? 45001 की बात कर रहा हूँ सर, ISO 45001 की बात तो कर सर रहा हूँ। अभी तो 9001 है ना सर, थोड़ा सा इंतजार कर लें, 45 भी आपको बता देंगे। आप अपना अच्छा सवाल कर लें, सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। सर, मैंने आपसे ये जेनेरिक एक क्वेश्चन पूछना था कि कोई भी पॉलिसी आती है अगर ISO के अंडर 9001 है या वट एवर 45001 है, तो ये ISO क्या कहता है कि वो आपकी वर्क प्रेमिसेस में डिपिक्ट होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, जैसे कोई HSE पॉलिसी है या CQI पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी है? देखिए, सीक्यूआई पॉलिसी तो स्टैंडर्ड का हिस्सा ही नहीं है।
45 में अगर है तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बट पॉलिसी तो एक ही है पूरे स्टैंडर्ड में, दैट इज क्वालिटी पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। और वो क्लॉज है 5.2 तमाम स्टैंडर्ड की। ये सर 10.3 क्लॉज नंबर है सर, कंटिन्यूअल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी नहीं है बेसिकली, वो प्रोसीजर की बात की जा रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो डिस्प्ले की आप बात कर रहे हैं वो है आपकी सेफ्टी पॉलिसीज जो होती हैं या एनवायरमेंटल पॉलिसी होती है। प्रीवियस वर्जन में पॉलिसीज को डिस्प्ले करना मैंडेटरी होता था। नाउ देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्ले, देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर इन कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इन डॉक्यूमेंटेशन। एग्जैक्टली सो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड की पॉलिसी के हवाले से एक स्टेटमेंट है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड हो तो आप क्लॉज 5.2 पढ़िएगा। उसमें कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन शेल इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड कम्युनिकेट द पॉलिसी। तो सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट ने, जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बैठ के पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, स्टैब्लिश करनी है। यानी फर्द वाहिद ने बैठ पॉलिसी नहीं बनानी। पहले क्या होता था, बस कंसल्टेंट ने पॉलिसी बनाई, खूबसूरत से फ्रेम बनवाया और पाकिस्तान पूरी कंपनी में लगा दिए। नाउ दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। नाउ राइट। ऑर्गेनाइजेशन शैल स्टैब्लिश, स्टैब्लिश के लिए ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने बैठना है और आइडेंटिफाई करना है कौन पॉलिसी बननी कैसे है, स्टैंडर्ड में उसकी रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन से एस्पेक्ट शामिल होंगे, देन पॉलिसी को मेंटेन करना है। Sorry, राइट। sir, पॉलिसी I will मेंटेनेंस interrupt करना this है। session because firstly we will discuss the slide by slide. Then after session complete, then we will keep the session question and answer is better, sir. Because all people is involved, everyone have the specific question. Then enter, okay, sir, I have this issue, I have this issue. Firstly, we will discuss the ISO 9001 complete. Then after we will discuss the question and answer. Sir, better this is the way. थैंक यू खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम बिल्कुल को फॉलो कर लेंगे। सो पॉलिसी को पहले इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है और कम्युनिकेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड की अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है नए वर्जन्स में। आपके सवालात बिल्कुल काबिले एहतराम है, सवालात आपके बिल्कुल लेंगे, सवाल ज़रूर लिखें आप, और उसके बाद हम वन बाय वन करते हैं। फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्ड 9, 14, 45 तीनों स्टैंडर्ड्स एक जैसे हैं। उसकी वजह ये थी कि लोगों की बहुत कंप्लेन थी पूरी दुनिया में कि स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड में आईएसओ ने 8 क्लॉजेस रखी हैं, किसी में 12 रखी हैं, किसी में 10 है, किसी में 9 है। पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड नाउ। नए जितने वर्जन है 9001 2015 के आने के बाद, ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड्स आर सेम। Why? Because it's a high level structure. High level structure means all structures are same. Same clauses, same clause name, but the change is prospective. Prospective जो है वो चेंज होगा, राइट? जैसे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, और लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, इंप्रूवमेंट, सब में आइडेंटिफिकेशन जो है। जब हम क्वालिटी का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो फोकस क्वालिटी होता है। इन्वायरमेंटल का स्टेटस, जब हम स्टैंडर्ड को इवेलुएट करेंगे तो हमारा नैरेटिव ये होगा कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को। और जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ेंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये चीज़ है। Any more question, guys, from this slide? Let's move on towards next slide. और आईएसओ का पहला स्टैंडर्ड आया 1987 में, यानी तकरीबन आईएसओ को 40 इयर्स लगे इस चीज को समझने के लिए कि स्टैंडर्ड किस तरह बनते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टैंडर्ड बन रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। 1987 में पहला स्टैंडर्ड आया, फिर 1995 4 में, 2000, 2008 और 2015। करंटली जो 9001 का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, दैट इज 9001 2015। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का है 2015 सेम। और हेल्थ एंड सेफ्टी आईएसओ 45001 का है 2018। तो दैट इज बेसिकली द ईयर ऑफ पब्लिश्ड, राइट? देन हम आगे जब चलते हैं तो बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल की। सो व्हेनेवर वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड व्हाई। बिकॉज आईएसओ के तमाम स्टैंडर्ड में हर स्टैंडर्ड का एक प्रिंसिपल्स होता है और एक मैथडोलॉजी होती है। जो मैथडोलॉजी है आईएसओ स्टैंडर्ड्स की वो सेम है। आई मीन वो सब में
PDCA साइकिल है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, राइट। बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब में डिफरेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 7 प्रिंसिपल हैं, जिसे हम कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कस्टमर फोकस सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। कस्टमर फोकस में ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर फोकस अप्रोच अडेप्ट करनी होती है। व्हाट इज कस्टमर फोकस अप्रोच? कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को इवेलुएट करना है। देन वी हैव लीडरशिप। लीडरशिप मींस कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का बहुत अहम रोल है ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वो कैसे? कि जब आप लीडरशिप को, इस चीज को इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं, तो लीडरशिप इज बेसिकली समवन हु हैज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। सो इन दिस पर्टिकुलर आईएसओ स्टैंडर्ड नाउ लीडरशिप कमिटमेंट इज मैंडेटरी। पहले इस स्टैंडर्ड्स में क्या था कि लीडरशिप कमिटमेंट इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी और लीडरशिप का काम साइनिंग अथॉरिटी थी, सिर्फ लीडरशिप। नाउ दे आर मच मोर देन द साइनिंग अथॉरिटी, राइट। दे आर मच मोर देन द साइनिंग अथॉरिटी, जिसमें उन्हें अपनी कमिटमेंट शो करनी है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, सपोर्ट करना है, इसके अलावा मॉनिटरिंग रखनी है, ये तमाम चीजें हैं। तो आज का जो आईएसओ के वर्जन हैं वो लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर करते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज आईएसओ ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इस लूप होल को आइडेंटिफाई किया कि जब तक लीडरशिप को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। वाई? बिकॉज लीडरशिप इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू कमर्शियल एस्पेक्ट्स। कमर्शियल एस्पेक्ट में तो लीडरशिप बहुत इंटरेस्ट लेती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट तो मुश्किल है। मतलब फिर वो कहते हैं कि यार जिसमें पैसे आए बस वो बात हमसे की जाए। आईएसओ ने इस बात को समझ में इस चीज को समझा कि जब तक आप लीडरशिप की कोई जिम्मेदारी नहीं रखेंगे, आज जब हम ऑडिट करते हैं तो हम सीईओ के साथ बैठते हैं, और जब तक सीईओ हमें टाइम नहीं देते, हमारे सवालात के जवाब नहीं देते, ऑडिट पास नहीं होता। तो सीईओ को भी इस बात की अहमियत का अंदाजा है कि ऑडिटर मुझसे, मेरे साथ, आई मीन सीईओ के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो मेरी इन्वॉल्वमेंट पूछेंगे कि हाउ डू यू इंश्योर योर इन्वॉल्वमेंट, योर कमिटमेंट। सो लीडरशिप कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिंसिपल। इफ in there is a company, there is no leadership commitment, then it will not implement, it cannot be implemented. Then we have process of engagement of people के लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ टास्क असाइन ना करे किसी रेलेवेंट पर्सन को, कि ठीक है जी आप क्वालिटी की जिम्मेदारी सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस की है, और सेफ्टी की जिम्मेदारी आईएसओ 45001 की सेफ्टी टीम की, और एनवायरनमेंट टीम की जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं। Everyone has the responsibility of quality, everyone has the responsibility of safety, and everyone has the responsibility of environment. Those who are the company's representative must be following the rules and regulation of the organization. यहाँ पर स्टैंडर्ड क्यूएचसी पॉलिसी बना के लिए कहता है, या क्वालिटी में क्वालिटी पॉलिसी, और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल पॉलिसी, और हेल्थ एंड सेफ्टी में हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी को कहा जाता है। देन वी हैव द प्रोसेस अप्रोच, कि जिसमें प्रोसेस अप्रोच से मुराद है, और प्रोसेस किसे कहते हैं? किसी भी काम करने के तरीकाकार को प्रोसेस कहते हैं। फंडामेंटल वे टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इज प्रोसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस अप्रोच, इट मींस आपकी तमाम प्रोसेसेस, योर ऑल प्रोसेसेस शुड बी अकॉर्डिंग टू पीडीसीए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, राइट। सो पीडीसी अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। PDC approach is very important for the implementation of ISO standards. All means all process. I mean it's related to administration procedure, quality department, safety department, maintenance. जो डिपार्टमेंट भी कोई काम कर रहा है वो पीडीसीए के मुताबिक हो, यानी एक्टिविटी करने से पहले आपकी प्लानिंग हो। जैसे कि हम आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज का ये जो सेमिनार या वेबिनार हो रहा है, इसकी प्लानिंग हमारी टीम ईद से पहले से कर रही थी। आई मीन रमजान से हम एक प्लानिंग कर रहे थे, आप सब को मुख्तलिफ तरीके से बताया गया, फ्लायर्स बनाए गए, प्रमोट किए गए फ्लायर्स को, और उसके बाद आज हम डू एक्टिविटी कर रहे हैं। आज डू एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग एक्यूरेट थी। अल्हम्दुलिल्लाह 65 पार्टिसिपेंट हमारे साथ इस वक्त इस सेशन में ज्वाइन है। इट मीन्स कि प्लानिंग अच्छी हुई है। इट मीन्स कि प्लानिंग जो हमारी टीम चाह रही थी जिस प्लानिंग में, वो उसमें सक्सेसफुल रहे। देन अब मेरी जिम्मेदारी है डू करने की, यानी मैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि हम आपको आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयर कर रहे हैं। देन वी हैव चेक पार्ट।
कि जिसमें आप लोगों ने ये चेक करना है कि इधर दिस इंफॉर्मेशन, दिस स्टैंडर्ड और दिस ट्रेनिंग वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर मी और नॉट। आफ्टर दैट आपने एक्ट करना है कि आपने एडमिशन लेना है, आपने सर्टिफिकेशन लेनी है और आपने अपने करियर को ग्रूम करना है। सो दैट इज प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। आप देखें कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं। आप अगर एचआर में हैं तो एचआर के अपने प्रोसीजर होते हैं। आप अगर मेंटेनेंस में हैं, वेयर हाउस में हैं, सप्लाई चेन में हैं, ऑल procedure should be SOP according to PDC. Then we have an improvement. For improvement, organization need to set a KPI. Organization need to set a KPI to where are the current performance indicators and where are we need to implement the management system. What is KPI? Key performance indicator. किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए आपको KPI आइडेंटिफाई करना होता है। जस्ट वेट अ मिनट। So what is KPI? KPI is basically related to set performance indicator कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू बी एन ऑडिटर एंड ट्रेनर। हाउ टू बिकम अ गुड ऑडिटर, हाउ टू बिकम अ गुड ट्रेनर। तो मैं उनको केपीआई सेट करके देता हूँ कि आपने अपने नेक्स्ट 6 मंथ किस तरह प्लान करने हैं। आपने लीड ऑडिटर कोर्स करने हैं, आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है, आपने केस स्टडीज रिव्यू करनी है, केस स्टडीज में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिव्यू करना है। दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कि आईएसओ में खासकर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में all decisions are taken on basis of evidence based decision making कि एविडेंस की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है। एविडेंस क्या एविडेंसेस हैं, किस तरीके से हैं, और उसकी बेसिस पे आपकी एविडेंस के एविडेंस कुड बी डेटा, एविडेंस कुड बी कस्टमर कंप्लेन, एविडेंस कुड बी लीगल रिक्वायरमेंट। बिकॉज in ISO we follow 3 level of policies: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पॉलिसीज हम इस तरह भी कहते हैं। लेवल 1 पॉलिसीज प्रोसीजर आर ड्रिवन बाय द लीगल रिक्वायरमेंट। ऐसा हरगिज नहीं है कि आईएसओ आप इंप्लीमेंट कर दें और लीगल रिक्वायरमेंट को पता ही ना हो। लीगल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में भी मौजूद हैं और वहां पर आईएसओ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट की इंप्लीमेंटेशन होनी है, वी नीड टू आइडेंटिफाई इट। आई मीन वी नीड टू इम्प्लीमेंटेड कि आईएसओ की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आईएसओ की लीगल रिक्वायरमेंट की इंप्लीमेंटेशन होती है। देन वी हैव रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ डू वी नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इंटरेस्टेड पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप कर रही होती है अपने डिफरेंट लोगों के साथ, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट के लोग हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है इंटरेस्टेड पार्टीज, जिसमें कस्टमर हैं, जिसमें अथॉरिटीज होती हैं, कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज होती हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये वो प्रिंसिपल हैं जब भी हम जफरान इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। सर मैंने जस्ट एक चीज पूछनी थी कि जैसे 45,001 में हमने देखा था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स भी था, पार्टिसिपेट करवाते थे वर्कर्स को। तो इसके अंदर मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स नहीं है, जो हम ये स्टैंडर्ड अभी 9001 पढ़ रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। इसके पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स भी तो क्यूएमएस का हिस्सा नहीं है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि क्वालिटी तो वर्कर्स ने मेंटेन करनी है, देन वो एंड कस्टमर्स को मिलेगी ना। अब लेट्स सपोज मैं एक ऑर्डर करता हूँ तो उसके अंदर ये एक हिस्सा नहीं है, इसका बन सकता है ये। आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, पूरी कर लें अपनी बात, फिर मैं आपकी बात को सर मैं आंसर कर बेसिकली ये देता कह हूँ। रहा था कि लेट्स सपोज मैं एक ऑर्डर करता हूँ, मेरा ऑर्डर है, मैं एक एंड कंज्यूमर हूँ। अब वो ऑर्डर कंप्लीट करना है वर्कर्स ने, जो वर्कर्स उस कंपनी के या उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उन्होंने। अब वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होगी तो वो क्वालिटी की ऑब्वियसली मुझे वो एंड कस्टमर जो जो प्रोडक्ट है मेरा वो मुझे मिलेगा क्वालिटी वाइज, जैसी मैं चाह रहा हूँ। बस सर। आपकी बात से मैं 200% एग्री हूं कि अल्टीमेटली हम आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन ही इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वर्कर्स की लाइफ आसान करें। टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक बात को समझिएगा कि जब आईएसओ 45001 में
इम्प्लीमेंटेशन या वर्कर पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, तो वर्कर्स से पार्टिसिपेशन से मुराद उसको इनपुट देना नहीं है, उससे आउटपुट लेना है। वर्कर पार्टिसिपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में एक सेपरेट क्लॉज इसलिए है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में उनका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, बट क्वालिटी में हम उनका फीडबैक इस तरह ले रहे होते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी या प्रोसीजर बनाते हैं, क्लॉज 8 जो ऑपरेशंस की है, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, वहां पर हम वर्कर्स के लिए या डाउन द लाइन जो लोग हैं उनके लिए प्रोसीजर बनाते हैं, तो वहां पर ये क्लॉज कवर हो रही होती है। बट वर्कर पार्टिसिपेशन को क्वालिटी आईएसओ ने अभी तक एड्रेस नहीं, आईएसओ 9000 का हिस्सा नहीं है, बट हम डिफरेंट दूसरी क्लॉजेज में इस प्रोस्पेक्टिव को कवर जरूर कर रहे हैं, बट सेपरेट क्लॉज नहीं है। सेपरेट क्लॉज हेल्थ एंड सेफ्टी में है, क्लॉज 5.4 वर्कर पार्टिसिपेशन, जिसमें हम वर्कर की पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और वर्कर की पार्टिसिप किस में, हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रैक्टिसेस में। उसकी वजह यह है कि वहां पर अगर जरा सा भी आपसे वर्कर से ऊंच नीच हो जाती है, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे आता है, वर्कर पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी सेफ्टी पे, कंपनी की रेपुटेशन पे। तो दैट इज द रीजन हम वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए डेलिबरेटली कोई इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ये चीज है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। मे बी पॉसिबल कि आईएसओ अच्छा, अभी जब आईएसओ के नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। अगेन दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट कर दें। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अब जो स्टैंडर्ड, अब जैसे कि वर्कर पार्टिसिपेशन है ना, अब इसका नया नाम आ गया, वर्कर वेलबींग। वर्कर वेलबींग, अब जब नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना, उसमें वर्कर वेलबींग का जिक्र जरूर किया गया है। उसकी वजह क्या है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे ख्याल में आई थिंक सो जो वर्कर वेलबींग की आप बात कर रहे हैं ना, ये राणा साहब का जो क्वेश्चन था ना, तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली जो ये कंसेप्ट आया है, ये तो वर्कर कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन की बात इसलिए होती है 45,001 में, क्योंकि जो सेफ्टी होती है बेसिकली बिहेवियर बेस्ड होती है, बिहेवियर से ही स्टार्ट होती है, तो वो वर्कर का बिहेवियर बहुत जो है ना काउंट होता है वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर वेलबींग पर काम करना है, ये नए स्टैंडर्ड्स में बात की जा रही है अक्सर। तो अब नए जब स्टैंडर्ड्स होंगे, उसमें आप देखेंगे कि वर्कर वेलबींग पे जो 2026 27 में क्वालिटी का स्टैंडर्ड आ रहा है, उसमें भी वर्कर वेलबींग की बात की जा रही है। अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज की तरफ आते हैं कि स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे है, कि स्टैंडर्ड क्या पूरा इंप्लीमेंट होगा। तो उसके लिए बहुत आसान तरीकाकार है कि whenever you evaluate the standard of ISO, अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं आईएसओ का और उसमें शेल वर्ड आता है, SHALL शेल, तो शेल इट मीन्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। शेल मीन्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, ईदर 9001, 14, 45, 27,001, 50,001, यू नेम इट। स्टैंडर्ड ने इटसेल्फ अपने आप को बहुत इजी कर लिया। तो जब हम मुझसे, जब ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि आप स्टैंडर्ड भेज दें हमें, और मैं उनको स्टैंडर्ड देता हूँ, वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, तो वो मुझसे पूछती हैं, ये तो 23 पेजेस, 28 पेज, 30 40 पेजेस के स्टैंडर्ड्स हैं, हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप पढ़ें इसको, और जिस क्लॉज में लिखा है शेल, वो क्लॉज मैंडेटरी है। यानी यानी मैं आसान लफ्जों में, पेपर इसका आउट है। यानी ऑडिटर आकर आपसे वो सवालात नहीं करेगा जिसके हवाले से आपको पता ही ना हो। ऑडिटर आकर आपसे शेल क्लॉजेस की बात करनी है। इससे पहले मैं बात कर रहा था 3 लेवल ऑफ पॉलिसीज की, वो पूरी कर लेता हूँ। फर्स्ट लेवल ऑफ पॉलिसी है लीगल रिक्वायरमेंट, सेकंड लेवल ऑफ पॉलिसी है आईएसओ रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड लेवल ऑफ पॉलिसी है कंपनी सेल्फ मेड प्रोसीजर। सो एज एन ऑडिटर, व्हेन वी कंडक्ट ऑडिट, फर्स्ट जो फर्स्ट लेयर है, हम फॉलो कर रहे होते हैं फॉर आईएसओ, फॉर लीगल रिक्वायरमेंट। यानी इफ अ कंपनी फेल इन implementation of ISO system, they cannot be, identify the management system, right? सो शेल क्लॉजेज है मैंडेटरी क्लॉज, कि शेल क्लॉजेज अगर आ जाए, इसका मतलब है कि मैंडेटरी है। ये चीज आपकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी मैंडेटरी है। इसमें कोई भी इसे कहते हैं, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, या फिर कोई कंसेशन या डिस्काउंट नहीं मिल सकता आपको वर्कर इसमें शेल क्लॉज में। शेल क्लॉजेस मैंडेटरी क्लॉज हैं। हाँ, अब शेल क्लॉजेस जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट की बात आती है, तो स्टैंडर्ड आपको शुड क्लॉजेस कभी कहता है कि इट इंडिकेट्स दी रिकमेंडेशन, कि स्टैंडर्ड आपको रेकमेंड कर रहा है कि इफ यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग, यू कैन इम्प्लीमेंट, बट देयर इज नॉट मैंडेटरी कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका ऑडिट में नॉन कंप्लायंसेस आ जाएंगी। नो,
ऐसा नहीं है, हम इसको दूसरी लैंग्वेज में OFI भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। देन मे और कैन है, इट इंडिकेट्स द परमिशन एंड पॉसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉसिबिलिटी है वो करना चाहे तो जरूर मे और कैन पे जाएं। In other words, the most important clauses of the standards are shall clauses. So if you evaluate, if you implement the shall clauses, that is mandatory. हमाद, हम आपका क्वेश्चन आखिर में ले लें क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो हम एंड में ले लेंगे क्वेश्चन ताकि सबके सवालात हो जाएं। आई होप ओके यू सर, जस्ट मैंने बस एक ही चीज पूछनी थी कि शुड है, शुड अगर लेट्स सपोज एक अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इसके अंदर वो क्या सर्टिफिकेशन जो है वो कंपनी अर्न कर लेगी कि नहीं कर पाएगी अगर वो शुड की क्लॉज आ जाती है तो? शुड की क्लॉज अगर वो इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये पूछना चाह रहे हैं? सर लेट्स सपोज वो शुड आ गया, आपने हाँ जी। जैसे हमने सर्टिफिकेट कह रहे थे, शुड हम शैल तो हो गया कि लीगल रिक्वायरमेंट है, ये तो आप फुलफिल करनी करनी, अगर ये नहीं होती नहीं तो वो नहीं, कंपनी कोई भी अर्न नहीं कर पाएगी सर्टिफिकेट। लेट मी क्लियर वन थिंग, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट तो वही है जो गवर्नमेंट की तरफ से, देखें वो समझें इस बात को कि स्टैंडर्ड ने एक बिल्कुल एक ओपन एरिया छोड़ दिया लीगल रिक्वायरमेंट के लिए। उसकी वजह ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर मैं अबू धाबी की एडनॉक पे इंप्लीमेंट करूंगा तो वहाँ एडनॉक सबसे पहले अबू धाबी के जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। शेल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की मैंडेटरी क्लॉजेज हैं, क्लियर, स्टैंडर्ड की मैंडेटरी क्लॉजेस हैं। इफ अ कंपनी विल नॉट फुलफिल शेल रिक्वायरमेंट तो आपका ऑडिट पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। शुड अगर आप करते हैं, अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन में, सर्टिफिकेशन अर्न हो सकती है, ठीक है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप यकीन करें कि अभी रिसेंटली मैंने ईद से रमजान में मैंने एक जगह पे एक असेसमेंट किया था, आई कैन नॉट कोट द नेम एज एन ऑडिटर। आज भी पाकिस्तान और इवन पाकिस्तान से बाहर भी, इवन मैं अभी उस दिन यूएस के क्लाइंट, अभी 2 महीने पहले यूएस के क्लाइंट पे एक ऑडिट कर रहा था ऑनलाइन। आज भी लोग इन ISO के स्टैंडर्ड की तमाम रिक्वायरमेंट को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। यानी आज भी हम जाते हैं तो हमें मीटिंग रूम में बिठाते हैं और बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं हमारे सामने और हम फाइल्स को देख कर ऑडिट कर रहे होते हैं। फाइल में प्रोसीजर्स लगे होते हैं खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन हम मजीद ऑडिट में मैं हमेशा उनको OFI देता हूं कि प्लीज इस पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट को खत्म करें, पेपरलेस एनवायरनमेंट लेकर आएं। ये तमाम चीजें PDF में हमें दिखाएं, इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाएं। We are not here to evaluate the printouts. We are here to evaluate the implementation. But मेरे हाथ कहाँ बंधे हुए हैं कि स्टैंडर्ड में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अभी फिलहाल कोई क्लॉज नहीं है। वंस स्टैंडर्ड ने कह दिया कि ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट डिजिटली, देन मैं उस पर नॉन कंप्लाइंस दूंगा, क्लियर। तो हम कहते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते रहते हैं कि देखें PDF करें, देखें कोई शेयर ड्राइव पे रखें, कोई वन ड्राइव पे रखें, ताकि ये हैप हैजर्ड्स से बचें, तो क्लियर। आई सर होप आप आप फ्लोर पे जाके, एडिटर जो होता है वो फ्लोर पे जाके एक्टिविटीज चेक नहीं करता कि जो उसने पेपर डॉक्यूमेंटेशन चेक की है वो जाके फ्लोर पे चेक नहीं करता? मैंडेटरी तौर पे चेक करता है, क्यों नहीं चेक करेगा, साइट विजिट में चेक करेगा वो, जी सर, ठीक है। मैंडेटरी है। ऑडिट्स जब हम करते हैं, ऑडिट की एक अलग, आई रिक्वेस्ट माई टीम के वो ऑडिटिंग पे एक सेमिनार रखें। ऑडिट्स की तो एक अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अभी तो हम सिर्फ ISO स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हम ISO में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट्स आर that data sheet which contain your data related to editable data, live data, and records are your previous data which is, you can say that legal requirement। और जब आप documents को, जब आप SOP, documents are all your SOP, and when you implement that SOP, that converts into record, every document which convert into record। So standard में अगर लिखा हुआ आ रहा है shall maintain, it means आपने उस clause में जो requirement है उसका data maintain करना है, and that is document। अगर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ आ रहा है शेल रिटेन, इट मींस कि रिकॉर्ड बनाना है, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्लियर। ये बहुत क्लियर सी बात है, शेल मेंटेन, शेल रिटेन, राइट। सो शेल मेंटेन मींस डॉक्यूमेंट्स,
शैल रिटेन मीन्स रिकॉर्ड। ना ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ने कहीं ये नहीं किया रखा कि आपने 3 साल का डेटा रखना है, 5 साल का रखना है या 25 साल का रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्कोप ऑफ वर्क को सामने रखते हुए खुद ये डिसाइड करना है। जैसे कि जब हम बैंक्स का ऑडिट करते हैं, वो कहते हैं हम 25 साल का डेटा रखते हैं, वी डोंट हैव एनी इशू। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये कहते हैं कि 3 साल का डेटा रखते हैं, रिटेंशन पीरियड 3 years का होगा, तो वी डोंट हैव एनी इशू। दिस इज इंटायरली डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब हम बात करते हैं जरा एक दूसरे स्टैंडर्ड की, जो कि है ISO 45001। 45001 प्रीवियसली कॉल्ड ओशाज 18001, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड था। ओशाज 18001 2007। ये वो स्टैंडर्ड था जिस पर काफी कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी पे सर्टिफाइड थी। 2019 में ISO के अम्ब्रेला में आ जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड, और इसको नंबर मिलता है 45001। सो आज भी यहाँ पे भी आप लिखा हुआ देखेंगे 45001, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। व्हाट आर द हेल्थ एंड व्हाट इज सेफ्टी? सी, इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मॉरली, लीगली एंड फाइनेंशियली। ऑर्गेनाइजेशन पे मॉरली, लीगली और फाइनेंशियली ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी के इस मैकेनिज्म, इस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। लोग मॉरली कैसे, कि लोग उनके पास जो आ रहे हैं वो सेफली आए, सेफली जाएं। नंबर 2, लीगली मींस लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 5 से ज्यादा एम्प्लॉय रखते हैं तो उनके लिए सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी प्रोसीजर्स आपने बनाने हैं, और उनकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है। नंबर 3, फाइनेंशियली, कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी प्रोसीजर नहीं बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली बहुत बुरी तरीके से डस्ट लग सकती है, बहुत बुरी तरीके से पेनलाइज हो सकती है। बट व्हाट आर द एस्पेक्ट आर कवर्ड इन हेल्थ एंड सेफ्टी? देयर आर टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं हेल्थ और सेफ्टी में। नंबर 1, हेल्थ रिलेटेड। सो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी इंटरनल बॉडी डैमेज हो रही है, मतलब कोई हियरिंग प्रॉब्लम डैमेज हो रही है, आई साइड वीक हो रही है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, इट विल कवर अंडर हेल्थ इशू। यानी मेरी अगर हेल्थ डैमेज हो रही है वर्क प्लेस पे काम करते हुए, मैं एक्सट्रीम गर्मी में काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी जो है बोन्स में इशू आ रहा है, सो दैट इज हेल्थ इंटरनल। अगर जॉब कोई भी फिजिकल पार्ट आपका डैमेज होता है, दैट विल कवर सेफ्टी एस्पेक्ट। So health and safety both are aspect in covered in the ISO, right? So either health issues, either safety issues, both issues are included in ISO management system, right? ISO 45001। ISO 45001 की implementation की principles क्या हैं? Number 1, safety of a person should not be compromised। कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कोई एक भी एम्प्लॉय की सेफ्टी, फिजिकल इधर हेल्थ, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, के जो इक्विपमेंट की सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। नंबर 3, गुडविल ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। आपको पता है जहां भी कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है या होगा, वहां पे अनफॉर्चुनेटली ये इशू आता है कि सेफ्टी के एलिमेंट्स या मैनेजमेंट सिस्टम में ये बहुत खतरनाक इशू आता है कि कंपनीज बैन होना शुरू हो जाती हैं, और जब तक उन्हें काम करने की इजाजत नहीं दी जाती, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन शुड बी प्रोटेक्टेड। इक्विपमेंट के बहुत सारी जगह पर आपकी लोग प्रोटेक्ट रहते हैं, बट इक्विपमेंट अगर कहीं खराब हो जाए तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन का उतना बड़ा ही लॉस है जितना बड़ा सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी है। फिर रेपुटेशन, के रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत मुश्किल से बनती है। हम अपनी फैमिलीज को ऐसी जगह पर शॉपिंग करने के अलाउ नहीं करते, या ऐसी जगह जाने का अलाउ नहीं करते जहां उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हम खुद कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी जगह जॉब करें जहां पर फिजिकल सेफ्टी जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगेन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो ISO 45001 में भी 10 क्लॉजेज हैं, सेम क्लॉजेज हैं, जिसमें क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 10 तक सेम ही रिक्वायरमेंट है।
Then we have then we have the EMS मैनेजमेंट सिस्टम। EMS में भी 10 क्लॉजेज हैं हमारी। क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 10 तक जो है वो ऑडिटेबल क्लॉजेज हैं। और क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। क्लॉज 5 इसकी मैं क्लॉजेज की तरफ चलता हूँ। यस, सो EMS में भी सेम क्लॉजेज हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई करना होते हैं। लीडरशिप कमिटमेंट, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन प्लानिंग, support, operations, performance evaluation and improvement. These are the 10 clauses. So ये 10 clauses हैं जो कि clause by clause हम देख रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट clauses हैं जो उस पर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। What are the benefits? Benefits क्या हैं स्टैंडर्ड के? बेनिफिट्स ये हैं कि जब भी आप ISO के स्टैंडर्ड इधर इधर 9, 14, 45 को इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका स्कोप उन तमाम कंपनीज में ओपन हो जाता है जो कि ये जहां पर ये सर्टिफिकेशन है। यानी आप हर उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ISO 45001 की इम्प्लीमेंटेशन, 9001 की इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड दीज पीपल, दोज पीपल हु आर सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन के लोग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर इंडस्ट्री में बहुत जल्दी आप ऑब्सोलीट हो सकते हैं। एंड नो वन वुड लाइक टू बी ऑब्सोलीट, नो वन वुड लाइक टू बी रिप्लेस। सो ISO स्टैंडर्ड यहाँ आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर में एक जैसे कहते हैं एक एज दे सकता है कि आपके पास अगर किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री हो, ISO की स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी सर्टिफिकेशन के बाद आप हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंसी की, इम्प्लीमेंटेशन की, ट्रेनिंग की, या आप अपनी करियर को एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर भी परस्यू कर सकते हैं। सो नाउ वी आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप अपना फीडबैक जरूर दे दें। और कोई सवाल है तो जरूर हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं आप लोगों से। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो सर इसमें नहीं था 45,001 का, क्योंकि मेरा हेल्थ एनवायरनमेंट का नहीं था, मेरा ज़्यादातर टेक्निकल ऑपरेशन का था। और क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने किया था ISO 9001। तो मुझे कम से कम थोड़ा सा आइडिया हो गया कि 45,000 में बेसिकली है क्या चीज़। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। मैं टू बी ऑनेस्ट तमाम प्रोफेशनल्स को इस वक्त ये कहता हूं कि आपका पैकेज कंप्लीट होना चाहिए। पैकेज कंप्लीट होने से मुराद ये आपके पास 9, 14, 45 की इम्प्लीमेंटेशन क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को करियर को देखते हैं कि आप ग्लोबल लेवल पर या पूरी दुनिया में आपकी CV को एक वेटेज दिया जाए। वाई? बिकॉज कंपनी इस वक्त हायर करती है मल्टीटास्किंग लोगों को। मल्टीटास्किंग बोलना बहुत आसान है, मगर क्या मल्टीटास्किंग होने के लिए आपके पास मल्टीपल मल्टीपल सर्टिफिकेशन है? क्या मल्टीपल काम है? मैं तो, आप मुझे कहें जहाज चला लो, मैं चला लूंगा, लेकिन जहाज का क्या हाल होगा आप सोच सकते होंगे। और जब तक मेरे पास उसकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, मैं कितना भी अच्छा उनको कन्विंस कर लूं, दे विल नॉट allow me to fulfill the requirement. So in order to fulfill the requirement, you must have 9, 14, 45 सर्टिफिकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ताकि आप देखें, मैं आज पाकिस्तान में हूँ, कल सऊदी अरब में होऊंगा, परसों कहीं किसी और कंट्री में होगा। क्यों? उसकी वजह ये कि जो मेरे पास अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन है उसकी वर्थ पूरी दुनिया में। दैट्स हाउ इट वर्क्स। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये NCs का बता दें, कंफर्मिटीज, नॉन कंफर्मिटीज, इनका बता दें थोड़ा सा। आवाज कट गई सर आपकी। सर मैंने कहा NCs का बता दें, NCs का, कंफर्मिटीज, नॉन कंफर्मिटीज, इसका थोड़ा सा इसके ऊपर सर बता दें ब्रीफ। देखें, देर आर टू काइंड ऑफ नॉन कंफर्मिटीज, partial non minor non-compliance and major non-compliance. Minor non-compliance are non-compliance related to partial। जब भी आप किसी क्लॉज को इनकम्प्लीट इंप्लीमेंट करते हैं वो पार्शियल नॉन कंप्लाइंस होती है। ठीक है।
पार्शियल नॉन कंप्लाइंस से मुराद ये है कि आपने एसओपी बना लिया, इंप्लीमेंट नहीं किया, माइनर है। लेकिन आपने एसओपी नहीं बनाया, आपको आपसे कोई चीज, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर बनाना है, प्रोसीजर ही नहीं बनाया। सो एनी नॉन कंप्लायंस, कंप्लीटली नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू लीगल, कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी आपने करवाई नहीं, ठीक है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी, आपने आप ऑर्डर को कह रहे हैं अच्छा ये करवाना है मुझे, तो हमें तो नहीं पता। तो ये चीज है। एक Yes. तो माइनर एंड मेजर दो किस्म की नॉन कंप्लाइंसेस होती हैं, माइनर इनकम्प्लीट वर्क एंड मेजर completely not done, completely ignorance. Yes. Any more question, guys? Then I would like to request to Mr. वालेकुम Faidan Zafar Saab to introduce themselves, and they would like to have a few words with you. सर सर आई हैव अ क्वेश्चन जी प्लीज प्लीज अपना नाम सर। बताइए फिर सवाल कीजिए। मोहम्मद अहमद। जी अहमद। सर बेसिकली हम जब हम सेफ्टी की जॉब्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो अब लाइक हम फ्रेशर हैं, लाइक सर्टिफिकेशन की होती है, तो वहाँ पे वो 3 ईयर 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हो। तो ऑलमोस्ट जितनी भी सेफ्टी की जॉब आ रही है 90% यही है, 95%। तो उसको हम कैसे टैकल करें? टैकल यही करें कि आप एक्सपीरियंस हासिल करें। एक्सपीरियंस कोई सर अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कहाँ से एक्सपीरियंस लें? देखें मैं इसका बहुत सीरियस आंसर दूंगा, ये बहुत बहुत सवाल होता है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ कि एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करें। दोस्तों हम समझते हैं कि जॉब ही एक्सपीरियंस है, हम ये समझते हैं कि जॉब ही एक्सपीरियंस है, मैंने जो जॉब की है वो एक्सपीरियंस है। नहीं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उसके हवाले से, आपके पास कोई केस स्टडी है जो सॉल्व है। मैं अगर आपसे कहूं भोपाल इंसिडेंट का रिस्क असेसमेंट करके दें मुझे, दैट इज एन एक्सपीरियंस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस आपसे इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि एक एक मैनेजमेंट सिस्टम को, एक कंपनी को उन्होंने सालों से बिल्ड किया होता है, वो अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में उसको नहीं रखना चाहता। तो उसके लिए आपने एक्सपीरियंस रखना है। आपके पास यहाँ पे ये जवाब होना चाहिए मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने 3 कंपनीज कंपनीज की केस स्टडीज को सॉल्व किया है और मैं चाहता हूँ उस पर मैं आपको प्रेजेंटेशन दूँ, कम अप विद सम सोल्यूशन। अगर आप बैठे रहेंगे तो उम्र बढ़ती रहेगी, उम्र का एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। थोड़ी सी सर तलखबाज जरूर है, लेकिन ये मुझे भी बहुत बाद में पता चली कि देखें जॉब कंपनीज इंटरेस्टेड होती है आपके, आपकी डू में, डू एक्टिविटी कितनी की आपने। तो मैं अभी भी लोगों को कहता हूं कि आप लीड ऑडिटर कोर्स करें। लास्ट डे मैं बहुत तंग करता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि लीड ऑडिटर कोर्स कर लिया, आप सोना नहीं है। अब आपने आराम से नहीं बैठना, सर्टिफिकेट तो लिंक्डइन पे लगा के सबसे गुड गुड एक्सीलेंट शाबाश CFBR पता नहीं क्या क्या ले लेंगे, लेकिन अब आपने केस स्टडीज में इन्वॉल्व करना है। आपने अपने कंपनी में जाना है, उनको कहना है भाई मैं अवेलेबल हूं, मुझे आप एज एन ऑब्जर्वर रख लो, मुझे उस प्रोसेस का हिस्सा तो बनाए। ये है। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा, बस छोटा सा। जी बिल्कुल। सर ये ISO 45000 का जब हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें हम एक चीज बार बार पढ़ते हैं, एनेक्जर SL। ये क्या है सर, एनेक्जर SL ये क्या चीज एनेक्जर SL बेसिकली स्टैंडर्ड को लिखने का भी एक तरीका कार है, स्टैंडर्ड को लिखने का ना एक तरीका कार है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मुख्तलिफ एडिटर हैं, और जिस तरह मैं अपनी एक किताब पिछले दिनों लिखवा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि किताब लिखना तो बहुत आसान है कि बस सारा डेटा लो और उसको एक फॉर्मेट में रखो और उसको बना दो। नहीं, इसका भी एक गाइड है। आज से पहले जो स्टैंडर्ड थे ना वो थे गाइड 83 पे। गाइड 83 इज बेसिकली द गाइडलाइंस टू प्रिपेयर दी स्टैंडर्ड। है? स्टैंडर्ड जैसे आज मैंने आपको फ्रेमवर्क दिखाया ना कि शुरू की 3 क्लॉजेस नॉन ऑडिटेबल हैं, क्लॉज 4 से जी। क्लॉज 10 ऑडिटेबल है, और सब क्लॉजेस का सेम नाम रखा गया है। ये एनेक्जर SL ने हमें बताया। एनेक्जर SL एक गाइडलाइन है कि ऑडिट को बनाते कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहें कि मैं एक ऑयल एंड गैस का स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ISO ने इसको इंप्लीमेंट करना है। ISO कहेगा कि आपकी नॉलेज है, ये आपका डेटा है, आप एनेक्जर SL पढ़ें, उसके मुताबिक पूरा एक फॉर्मेटिंग करके दें हमें। So that's how ISO standard prepare on Annexure SL. Annexure सर SL is basically the guide. हम इसको ISO की लैंग्वेज तो नहीं कह सकते ना, एनेक्जर SL को नहीं नहीं, लैंग्वेज तो अलग चीज है ना। ISO की लैंग्वेज नहीं है ये, ISO को लिखने की का तरीकाकार है। जैसे कि मैं तरीका कार है, अगर अपनी ठीक है। जैसे कि मैं अपने अपनी जिंदगी पे किताब लिखवाऊँ ना, ऑटोबायोग्राफी लिखवाने जाऊंगा, और मैं उनसे कहूँ कि भाई मेरी सर्टिफिकेशन पहले डाल देना,
फिर मेरी अचीवमेंट डालना, मेरा बचपना बाद में डालना। वो कहेंगे नहीं सर, आप हमें डेटा दे दें, हमारे पास एक एनेक्जर है, हम उसके मुताबिक बनाते हैं हर ऑटोबायोग्राफी को, आपके हिसाब से नहीं राइट, बनाएंगे सर। सो राइट सर, दैट्स हाउ थैंक इट यू सर, वर्क्स। थैंक यू सर। साद हमीद साहब, फाइनल क्वेश्चन। यस सर, मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ जी, इन्होंने जो सवाल पूछा है सर, ये एनेक्सर एसएल जो है और हाई लेवल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट उनका सेम है, लेकिन ये है कि एचएलएस जो है, जिसको हाई लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो 2012 में आया था, और 2021 में जो आईएसओ ने उसने रिप्लेस किया था एचएलएस को हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ, एचएस के नाम पे। तो जो एचएलएस है वो बेसिकली वही चीज है एनेक्सर एसएल वाला, लेकिन वो एनेक्सर एसएल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर देता है सारे आईएसओ सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स को। और जो आईएसओ है जिसने जब रिप्लेस किया था उसको हार्मोनाइज स्ट्रक्चर में, तो उसका ये है कि वो एचएलएस या एनेक्सर एसएल, उसमें उन्होंने ये किया था कि 10 क्लॉजेस स्टैंडर्डाइज बनाए थे इन्होंने, और उसी के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किए थे बाकी सारे आईएसओ के साथ, और फिर कॉमन टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन देके उन्होंने लॉन्च किया था इसको। सिर्फ ये ऐड करना था। थैंक यू सर, क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? जी जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की। जी क्वेश्चन करें बिल्कुल। जी, मुकर्रम रियाज बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे नबोश आईजीसी के फौरन बाद कर सकते हैं या एक्सपीरियंस के बाद कुछ करना चाहिए? अच्छा, इसका मैं फनी आंसर दूं या मैं सीरियस आंसर दूं, ये बताएं आप। दोनों ही दे दें। नहीं, पहले कौन सा दूं ये बताएं। पहले सीरियस दे दें। लेकिन सीरियस यही है दो प्यारे दोस्तों, कि लर्निंग में ना वेट नहीं करना चाहिए, इसके बाद, उसके बाद, ईद के बाद, रमजान के बाद, मुहर्रम के बाद, रबीउल अव्वल के बाद, तो जिंदगी के बाद हो जाता है। तो मैं तो पहले से, सबसे पहले अगर देखें, मैं अगर हायरार्की आइडेंटिफाई करता हूँ ना, मैं सबसे पहले और लोगों अपने प्रोफेशनल्स को कहता हूँ आईएसओ कर लें, आईएसओ 45001 करें, ठीक है, आयोश करें, ओशा करें, फिर निबोश की तरफ जाएं। ये है, डायरेक्ट भी निबोश पे जा सकते हैं। बट मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में भी रिस्क असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं वो सर्टिफिकेशन पहले करता हूं जिसका नेगेटिव रिस्क कम है। तो आईएसओ 45001 एक ऐसा कोर्स है जो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जब हम निबोश पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो हम पार्टिसिपेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सेफ्टी के हवाले से बेसिक नॉलेज अच्छी है, उससे ऊपर लेके जाते हैं उसको। व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज हैजर्ड, ये जरूर बताया जरूर जा सकता है, लेकिन निबोश में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट को पता हो। आईएसओ 45001 में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं सब चीजें बच्चों की तरह समझाता हूँ, बेस लाइन बनाता हूं, क्योंकि मुझे उनको आगे जाके ऑडिटर बनाना होता है। ये इसका आंसर है। तो आप पहले 45,001 कर लें। अच्छा सर, एक असल में क्वेश्चन है। असल में तो पहले जी जी जी, पूरी कर लें अपनी बात जल्दी से। असल में पहले मैं कर चुका हूँ, पेपर दे चुका हूँ, अब रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अब तो वो कर चुका हूँ, अब 45,001 कर रहा हूँ, तो उसका ये तो इशू नहीं आएगा कि एक्सपीरियंस है नहीं है, तो पहले 45,001 कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं सर ऐसा इसके नहीं है। अंदर देखिए हमारे मुकरम भाई पास को मैं एक स्टूडेंट्स आते एग्जांपल हैं। दूं। मुकरम भाई जी को जी एक एग्जांपल जी मैं जी सर जी। मैं एक मार्केटिंग और सेल्स का बंदा हूं जिसने बीबीए किया, और आज तक मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने निबोश किया, और निबोश अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, खुद किया सब, खुद माशाल्लाह, से किया। जबरदस्त। फिर 45,001 भी मैंने खुद किया और खुद से क्लियर किया, और ये रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनवरी में या फेब के एंड में मैंने अटेम्प्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो भी क्लियर हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग, कि आप कितना अच्छा लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये इस चीज़ में मैटर नहीं करता, वो सर वाली बात है कि एब्सोल्युटली, आप जब करना चाहते हो आप बिल्कुल, करो। मैं इस बात से एग्री मैं आपके करूंगा। सामने एग्जांपल मौजूद हूँ, मेरे पास कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं मेरे अंदर एक अर्ज है कि यार मैं इसको अब परसू करूँ अपने इस कैरियर को, और मैं इसके अंदर आऊँ, और मैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाता बस हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। दैट्स इट। इसके अलावा अभी तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज के अंदर कि मुझे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बेसिक लेवल से ही कोई उठा ले। बट मैं साथ साथ एक चीज़ कर रहा हूँ, अपनी सर्टिफिकेशन साथ साथ कंप्लीट कर रहा हूँ, इनको छोड़ नहीं रहा। तो सर, आपने साथ में ओशा और ये दूसरा जो है आयोश भी किया हुआ है नहीं, आयोश मास्टर? ओशा मैंने नहीं किया, आयोश ओशा मैंने नहीं किया, तो मैंने सर नहीं कह किया। रहे हैं कि वो भी जरूरी है साथ में। वो भी जरूरी है, वो लिटरली वो आपकी बेस बना रहा होता है। आयुष ओशा मैंने बाद में पढ़ा था, वो बेसिकली वो वही सब कुछ है जो आप अब अगर निबोश में पढ़ रहे थे। नबोश और 45,001 कर लेते हैं, तो फिर तो साथ में उसकी जरूरत नहीं है ना? देखिए, वो जरूरत करते। तो किसी चीज की भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जरूरत तो फिर जॉब करने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं ना। उसमें सर ये है कि अगर इन्होंने नबोश कर लिया है तो इनको आयोश करने की जरूरत नहीं है, देखिए, मैं क्योंकि मैं वो मैं यूके अपनी बात, यूके की सर्टिफिकेशन है,
और आपने लेवल हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन कर ली है, फिर बस आप मैं ओशा कर लें, जो कि हम्म, एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, ठीक है, वो उसका मैं आपको आपको फायदा होगा। लास्ट लास्ट बात कहूंगा। मैं वो बात जो कर रहा था उसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि जरूरत तो किसी चीज की भी नहीं है, लेकिन जरूरत लर्निंग की जरूर है। ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट्स है ना, निबोश, ओशा, आयोश, जितने भी खूबसूरत सर्टिफिकेट है, मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि टिकट है, टिकट टू ऑर्गेनाइजेशन। जब एंटर दी आपने जमा ऑर्गेनाइजेशन सर, करा दिया बिल्कुल। ना, असली निबोश आपका शुरू होता है जब आप सेफ्टी किट पहनते हैं ना और साइड पे खड़े होते हैं, वो दिन होता है आपका निबोश का। तो प्यारे और दोस्तों, सर जब आप हम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं ना, फिर पता चलता है भी आपकी लर्निंग कितनी है, चाहे तो, आपने 50 सर्टिफिकेशन की हुई है, जब तो आपने इंटरव्यू आप क्लियर करना है तो आपने बताना है कि क्या है आप। बस ये तो बस लास्ट बात यही कहूंगा कि जो ट्रेनिंग करें इन्वॉल्व हो उसमें, वो अपने पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं उसे आप सीखें और शॉर्टकट ना ढूंढें। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशनल शॉर्टकट तलाश करते हैं, करने के चक्कर में 50 सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन आता वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो जो ट्रेनिंग करनी है करें। एक्सपर्ट हमारे साथ फैजान साहब अरफाक मौजूद साहब, हैं, वो आपको अतीक और आपको सर, बताने जस्ट के लिए शॉर्ट तैयार। क्वेश्चन अभी सर। शॉर्ट क्वेश्चन के मैं $100 चार्ज करता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के नो 500। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जस्ट सर, आप जाते हैं जब ऑडिट करने जाते हैं, जैसे कि आपने ट्रेनिंग में भी ये चीज़ कही है कि हमको ना प्रोटोकॉल में बिठा दिया जी जाता है, ऑफिस में बिठा दिया जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में तो सारी चीज़ें ओके होती हैं सर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है आईएसओ का, सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती। तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होता कि आप वेरीफाई करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट्स सपोज के क्वालिटी में अगर 27 लोग हैं, तो उनमें से कोई दो चार बंदे बुला के चेक करें कि विजिबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन में तो सारी चीजें होती हैं सर, जस्ट। अच्छा सर, आप शायद कभी मेरे साथ ऑडिट पे नहीं गए। अगर आप ऑडिट पे जाएंगे ना तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, कि बोलेंगे कौन इंसान है ये। मैं आप डरा नहीं रहा। देखिए ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है एज एन ऑडिटर। हम सर इम्प्लीमेंटेशन के मेरा, वक्त सॉरी टू से, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ है सर दो प्रोजेक्ट्स पे ना, तो वहाँ पे मैनेजर ने ना, जो उनके जितने भी टीम थी ना, तो उनको भगा दिया जी थी, सॉरी टू से, यानी मैंने फेस किया जो चीज़, वो इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखिए देखिए सिनेरियो टू सिनेरियो इम्प्लीमेंट होता है, वेरी करता है, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ ऑडिट का। ऑडिटिंग का जी तरीकाकार सर। ये है कि जब सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट ओके। रिव्यू नहीं करेंगे ना तो हमें ऑडिटी जो कहेगा हमें उस पर अमल करना पड़ता है, या हमें उसको सही मानना पड़ता है। सबसे पहले हम प्रोसीजर को हाथ में लेते हैं, प्रोसीजर मिल गया, राइट। अब हम कहते हैं आजा साइट पे इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाएं। ओके। सिंपल, से व्हाट यू डू व्हाट यू राइट। जो आप कह रहे हैं वो लिखा होना चाहिए, और जो लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, भाई यही ऑडिटिंग है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। सिंपल। अगर कोई कहता है मेरे पास 5 सर्टिफिकेट है, मैं और ये तमाम चीजें, देखिए मैं कोई पुलिसिंग एक्टिविटी नहीं हूं, मैं किसी पुलिस में नहीं हूं, मैं आईएसओ का एम्बेसडर हूं। एंड आई नीड टू फॉलो द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की क्लॉजेस 7.2 क्लियर कहती है कि आपने कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट करनी है, तो वो पूरी ट्रेनिंग में चीजें होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन जरूर चेक करते हैं भाई, इसके बगैर हम नहीं छोड़ते किसी, हम के मुराद ऑडिटर नहीं पास कर सकते किसी को। ओके So सर, I थैंक would यू वेरी like मच to सर, थैंक request, यू। thank you very much, all of you. Now I would like to request the expert, are from GSC, Mr. Fazan Zafar Saab. Thank you, Fazan, for joining us. And I would like to request you to please have a few words with the participant. They are keen to learn with you. आपने काफी टाइम दिया। एंड रेस्ट ये कि मेरे ख्याल में आपकी कोई आज कहीं एंगेजमेंट भी थी किसी के साथ, सो आप अगर सेशन लीव करना चाहें तो प्लीज लीव कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है Sure, सर, sir. जस्ट। Over to you. Thank you. ओके ओके ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बेसिकली मिस्टर अफाक से पहले जो है ना, वो कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस मैंने करनी थी, लेकिन मिस्टर अफाक का सेशन शायद ज़्यादा ज़रूरी था। रीज़न इज दिस के जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे ना, उस टाइम कुछ इंक्वायरीज आ रही थी कि सर ये सेशन जो है ये पेड होगा, इस सेशन का कोई सर्टिफिकेट के चार्जेस तो नहीं होंगे। मैं अपनी बात मैक्सिमम 5 मिनट में खत्म करूंगा। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। माय नेम इज मोहम्मद फैजान जफर। आई एम HST ट्रेनर एंड कंसल्टेंट एंड ओनिंग ग्लोबल कंसल्टिंग फॉर सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। वी आर अप्रूव्ड सेंटर फॉर CQ IRCA trainings, OTHAM, NVQ, IOSH, OSHA, and other certifications as well. We don't do any third party certifications. So one thing, सीरीज ऑफ सेशंस जो है वो नेक्स्ट भी आप समझें कि ये चलती रहेगी, ठीक है, और विदाउट एनी कॉस्ट चलेगी। बहुत क्वेश्चन था सर्टिफिकेशन कॉस्ट ज्यादा है।
जो लोग सर्टिफिकेशन अटेंड नहीं कर सकते वो लोग ये हमारे अवेयरनेस सेशंस जो फ्री सेशंस हैं उनको लाजमी ज्वाइन करें। मार्केट में गुड प्रैक्टिसेस बहुत कम है, लेकिन अ, ये गुड प्रैक्टिसेस आपको जीएससी के प्लेटफॉर्म से देखने में इन फ्यूचर भी मिलेंगे। होपफुली एवरी मंथ 2 सेशंस जो हैं अवेयरनेस सेशंस, जिस तरह से फाक साहब कह रहे थे कि ऑडिटिंग के ऊपर पूरा एक सेशन होगा, तो हम ऑडिटिंग नेक्स्ट सेशन जो है वो हम पूरा एक ऑडिटिंग के ऊपर करेंगे। और आज कम टाइम था मिस्टर अफाक के पास, लेकिन होपफुली नेक्स्ट सेशन जो होगा वो अराउंड 2 to 3 आवर्स का होगा और वो टोटली ऑन ऑडिटिंग होगा। सो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस तरह हर मंथ 2 सेशंस लाजमी होंगे। पेड सेशंस भी चल रहे होते हैं। तो प्रॉपरली 9 to 10 डेज की ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो 9 to 10 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करें। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि अभी हमारा प्लान नहीं है, नेक्स्ट हमारा प्लान है, हम पहले जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो चीज़ें देखेंगे, पहले समझेंगे हमने ये काम करना, सर्टिफिकेशन करनी, तो आपके पास एक जो है वो एक रोड मैप आ जाएगा, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी फील्ड के लिए हूं भी या नहीं। ठीक है, तो आपका टाइम नहीं लूंगा, काफी टाइम हो गया। ठीक है, वन थिंग दैट इस तरह की लेक्चर सीरीज जो है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी चलेगी। और मैं खुद एचएससी से रिलेटेड सीरीज हैं, आई एम अप्रूव ट्रेनर, एनवीक्यू असेसर, ऑथम अप्रूव ट्रेनर, आयोश अप्रूव ट्रेनर, ओशा अप्रूव ट्रेनर। आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एवरीबॉडी अप्रूव ट्रेनर एज वेल। तो और ट्रेनिंग्स को मैं लेके चलूंगा और अफाक साहब जो हैं और मिस्टर नुमान हमारे ट्रेनर हैं, वो लीड लेके चलेंगे। फैजान फैजान साहब सीक्यूएम की कोई चांसेस भी हैं? काइंडली काइंडली अपना माइक जो है ना वो म्यूट करें, जो भी बात कर रहे हैं आपस में। किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। फैजान साहब सलाम अलैकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर सीक्यूएम की भी कोई ट्रेनिंग है आपके पास या इससे रिलेटेड कोई कोर्स आपका है? जी फैजान साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूँ सीक्यूएम आपकी पीएमपी। सॉरी सर। वॉइस क्लियर नहीं है, बोलिए। अमजद अपना बंद करें। ओके सर। सर्टिफाइड मैनेजर क्वालिटी का एक कोर्स होता है, वो भी आप कंडक्ट करवाते हैं? इसके अलावा किसी का क्वेश्चन को? सर ऑलरेडी 2 बंदों ने क्वेश्चन किया है। जी जी बिल्कुल हम कोर्स जो है वो करवा रहे हैं। आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं, सईद वहाब अली, मिस अशना, मिस फरवा, मोहम्मद फैजान। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं, वो सारे ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप अगर ग्लोबल कंसल्टिंग के पेज पे जाएंगे वहाँ पे भी सबके नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। आप किसी से भी कांटेक्ट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, मैं मेल शेयर कर देता हूँ चैट में, तो जस्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैंने काइंडली ये पूछना था कि सर मैं वैसे शटडाउन्स वगैरह लगा रहा हूँ, तो आने वाले दौर में मैंने आयोश किया हुआ है लेकिन निबोश नहीं किया हुआ। तो निबोश के बारे में मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए तो काफ़ी मेहरबानी ठीक है, होगी सर। बिल्कुल ठीक है, आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आप यस सर। पेज के वहाँ पे जो भी व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, ठीक है, आप उसको क्लिक यस करेंगे, सर। आपको जो है वो मिल जाएगी। रेस्ट कोई क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर। सीरीज सीरीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा अपनी रिकमेंडेशंस दें। ठीक है, अपनी जी अस्सलाम रिकमेंडेशंस वालेकुम सर। ऑडिटिंग से जी रिलेटेड सर। करनी है सर अगली मैंने सेशन। ये अभी अभी ये ज्वाइन किया है, तो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरे कमर में थोड़ा सा बाल पड़ा हुआ था। मैं अभी रिसेंटली सऊदीया से आया हूँ, तो जिसकी वजह से पहले मेरा पाँव निकल गया था, मेरी पाँव की उंगली टूट गई थी, जिसकी वजह से वो है। तो अब कमर का वो मसला बन गया था, इसलिए ज्यादा देर मैं बैठ नहीं सकता था। तो अभी जरा अभी आके बैठा ही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं देखो आया था लिंक तो मैं कांटेक्ट करूँ। तो सर पता नहीं था कि किस बारे में ये हो रही थी मीटिंग, तो इस वजह से। जी कोई और क्वेश्चन जी? सर सर आई विल आप रिकमेंड अभी आर्टिफिशियल जैसे इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम में करवा रहे हैं आईएसओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये बिल्कुल आप अपने टीम मेंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, बिल्कुल करवा रहे हैं।
ISO मैनेजमेंट सिस्टम सारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा थोड़ा थ्रोट का इशू है, इस वजह से आवाज़ सही नहीं। और जी जी ये सेशन थोड़ा मेरे मुझसे मिस हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर देंगे। पे अवेलेबल होगी। जी सॉरी सर, कहाँ पे होगी? यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और आप जी सब सर। वहां से ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक, थैंक थैंक यू यू। सर। जान साहब एक सवाल था। जी वसीम सर। इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी फॉर रिव्यू के लिए? जी जी वो भी शेयर कर दी जाएगी, वो भी शेयर कर दी जाएगी। इस सारे सेशन के नोट्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी जी जी। वे बेसिकली वी आर ब्रेकिंग द ट्रेंड के हर चीज कैंडिडेट्स को सेल ना की जाए। कुछ चीजें कैंडिडेट्स को आप कह लें कि कम्प्लीमेंट्री भी दी जाएं। तकरीबन कोई पिछले 1 डेढ़ साल में आफ्टर कोविड इफेक्ट्स ये हैं कि कुछ भी कैंडिडेट्स के लिए जो है ना वो ऐसा नहीं है, लाइक अवेयरनेस सेशंस, लाइक कोई फ्री सर्टिफिकेशन, कोई इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के नीला जी हम जब नीला सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आईएसओ के लीड आईएसओ के 45001 के कोर्सेज होते हैं, इनकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, 2 ईयर होती है? ये इसकी वैलिडेशन जो है वो अराउंड आप कह सकते हैं 5 इयर्स के लिए जो है वो। अस्सलाम वालेकुम तो फैजान इसका साहब। रिन्यू का क्या प्रोसेस है प्लीज सर? फैजान साहब सुन रहे हैं? हेलो। मैं सुन रहा हूँ। जी सर, इसके रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है प्लीज सर? जी आईएसओ सर्टिफिकेशन 5 ईयर के लिए है ना, तो इसका जी रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है? आपने किस इंस्टीट्यूट से की है? आपने इंस्टीट्यूट से की है किसी? नहीं, यहाँ से ही किया था। बेसिकली इसके बाद 1 डे ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट से हम्म, आपने किया आप चेक करें, वो 1 डे ट्रेनिंग सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वैसे अगर वो चार्ज भी करें तो काइंडली पे कर हम्म। दीजिए, कोई दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू, अप्रिशिएट इट सर, थैंक यू वेरी मच सर। 1 डे सेशन होता है जी। फैजान यस सर, सर, थैंक यू। जी काशिफ। फैजान सर, काशिम महमूद सर, मैंने फैजान साहब के साथ ISO 14 और 45 दोनों किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज का सेशन ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा रिसेंटली हुआ था दोनों कोर्सेज। तो उसके बाद ये आपको रिव्यू करने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया आपने, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस एफर्ट को। नेक्स्ट भी आपके साथ जो दूसरे आपके आएंगे नए सेमिनार इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। तो ये थैंक यू सर। नहीं पता था आपको, का शुक्रिया। ठीक है सर, बिल्कुल 9001 हम करवा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा है बकर इंजीनियर, जी जी बिल्कुल करवा रहे हैं। अप्रूव्ड सेंटर है CQA का के इन एसोसिएशन विद क्वालिटी अकेडमी यू। मे भी सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और सबकी ईमेल्स जो है ना वो हमारे पास सबको जो है वो किसी ने अपनी ईमेल जो है वो नहीं नोट करवा सके, नहीं किसी ने आपको लिंक शेयर किया है सिर्फ ज्वाइन करने के लिए, तो काइंडली अपनी ईमेल जो है वो हमारी टीम को नोट करवा दीजिएगा, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट जो है वो इसका अवेयरनेस सेशन का GSC की तरफ से वो आपको रिसीव हो जाएगा। वो आप इनबॉक्स सेशन में जो भी ईमेल्स आ रही हैं काइंडली उनको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अच्छा सर, ये इसका यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा जी ग्रुप नहीं, में। बिल्कुल कर दिया जाएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा। नहीं, थैंक यू। फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो आप यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, बायो में ऐड कर दें। वो आपका माइक ऑफ है। जिस जिस नंबर से आपको मैंने व्हाट्सएप की है, आपको इनविटेशन शेयर की है, उसी नंबर पे काइंडली आप सब अपनी ईमेल शेयर कर दें। आपको वहीं से कंफर्मेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है आप सबको।
और कोई इंक्वायरी भी तो वहाँ पूछ सकते हैं। इनबॉक्स से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो वहाँ। श्योर सर। अगर कोई मिस हो गया तो काइंडली उनको सर्टिफिकेट जाना चाहिए। ओके। जिसका कोई क्वेश्चन है वो सेशन में स्टे कर ले, अगर कोई लीव करना चाहता है तो लीव कर सकता है। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। रेस्ट इंशाल्लाह ताला एमबीक्यू, ऑथम, आयोश, ओशा, आयमा, इससे रिलेटेड जो है वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, खास तौर पे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि उसकी सर्टिफिकेशंस जो है वो मार्केट में कम है, और अगर मार्केट में है तो उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उसकी एक प्रॉपर सीरीज जो है ना इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, वो हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। मैं राशिद को मैसेज कर दूं, 1 मिनट। हाँ। अच्छा सर, ये आईएसओ का ट्रेन द ट्रेनर है, इसका कोई शेड्यूल आ रहा है नेक्स्ट? इसका ट्रेन द ट्रेनर आयुष। बिल्कुल टीम मेंबर से कांटेक्ट कर, ठीक है। सर एक दफा आयोश और निबोश दोनों की ट्रेनिंग हो जाए तो इसके बारे में है ना सर, काफी अरसा हो गया मुझे किए हुए, आयोश भी। तो वैसे मैं करता रहा हूँ, अभी रिसेंटली आया था सऊदीया से तो कुछ कुछ मालूम है। तो अगर इसमें भी थोड़ी अवेयरनेस मिल जाए तो काफी बेहतरी हो जाएगी सर, हेल्पफुल हो जाएगा सर मुझे। ये हमारा सिर्फ आप ये कह लो कि सेशंस का फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस का एक स्टार्ट है, ठीक है, अवेयरनेस सेशंस का, तो हर कोर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला हो, डोंट वरी। इंशाल्लाह। ठीक है सर, मैं यही चाहता हूँ अस्सलाम कि वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैजान भाई, ये 9001 2015 आईएसओ क्वालिटी के रिलेटेड इसका कोई तरतीब है? बिल्कुल है, जो है 13 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अप्रैल से 13 13 अप्रैल। ओके। टीम मेंबर से कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ ग्लोबल कंसल्टिंग का लिंक सबको शेयर किया पेज का? जी सर, वो शेयर कर दीजिए, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ सबको। फाइन। बोर्ड के बारे में ये फ्री क्लासेस की जाती हैं। ठीक है ना, ये देख लो, ये भी ज़्यादा सेशन। अगर तेरा कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। आप सबकी नोट करनी है, ठीक है, जितनी भी इनबॉक्स में मेल्स आ रही हैं सब नोट करनी है। पूछना कोई से बात करूँ, मैं तो मेरे लिए क्या है, कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वहीद। सर मैं रेस्क्यू 1122 में होता हूँ, मुल्तान पाकिस्तान में। और मैं सेफ्टी का कोर्स करना चाहता हूँ, निबोश का। तो मेरे लिए कौन सा सेफ्टी का कोर्स है वो जो बेस्ट रहेगा, जो मुझे आगे जाके सही जोन सा ना। ये बेसिक आयुष से स्टार्ट करो। आयुष। आयुष करो, ठीक है, ठीक। और उसके बाद जो है वो फिर अपनी बोझ की तरफ जाओ, ठीक है। ठीक। ठीक। पेज पे जाओ, वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है ना, ठीक है, उसको क्लिक करो, देन मैं आपको सब डिटेल्स जो है वो गाइडेंस सारी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, कि क्या रोड मैप आपका होना चाहिए सेफ्टी की फील्ड को प्रॉपर लेके, ठीक है।
ठीक। हैप्पैज़र्डली ऐसा नहीं करना कि जो कोर्स आपको नंबर 3 पे करना चाहिए आप नंबर 1 पे कर लो, नंबर 1 वाला कोर्स नंबर 3 पे कर लो, नहीं। फिर बेस को लेके चलो प्रॉपर, अगर इस फील्ड के अंदर नहीं हो। ठीक ठीक। मैं वैसे फायर फाइटर हूँ, सेफ्टी से ही बिलोंग करता हूँ। ओके और ओके, माशाल्लाह से 18 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, तो फिर आप डायरेक्ट लेवल 3 को जो है ना वो अप्रोच करो। ठीक है, आप मुझे अपना काइंडली व्हाट्सएप नंबर जो है वो ड्रॉप कर दो। वो आप ठीक फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दो इसके अंदर कमेंट्स के अंदर ना। और ठीक है। फेसबुक पेज के अंदर व्हाट्सएप का बटन है, उसको क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। ठीक है, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ मजीद। तो ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। ये वीडियो जो है ना वो मेरे द्वारा यूट्यूब पे अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी ईमेल सेंड करना जो है वो भूल गया, ठीक है, तो इनबॉक्स के अंदर जो है अपनी ईमेल काइंडली टाइप कर दे, उसको भी सर्टिफिकेट उसकी ईमेल पे नेक्स्ट वीक में रिसीव हो जाएगा। वहाँ आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो काइंडली। जी फिजान सर, ये हमने तो ऑलरेडी वो फॉर्म भी सबमिट कर दिया था ना, जो पार्टिसिपेंट फॉर्म ओके, था। आपने फॉर्म सबमिट किया तो इट्स फाइन, आ जाएगा आपको। ठीक है, जिन्होंने अस्सलाम फॉर्म सबमिट वालेकुम किया। सर। जी वालेकुम सलाम, इत्ज़ा कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है सर। घूम पे शुक्र शुक्र। जी इत्ज़ा। सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बेहतरीन था वेबिनार अवेयरनेस सेमिनार। तो इसको मज़ीद होने चाहिए और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी। इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेगी। इंशाल्लाह। मंथ आप कह लो कि 2 अवेयरनेस सेशंस जो है ना वो लाजमी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। सर आजकल ये निबोश के सेम नेम जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सर इसका फायदा है या बस ऐसे ही है सर? क्योंकि सर वो गल्फ में एक दो केसेस हुए थे कि कुछ लड़के लेके गए थे, तो उनका जब वो वेरिफिकेशन हुई तो उन्हें वो कर लिया गया था वहां पे। अगर वो किसी सीट पे गए हैं तो उन्हें उस सीट से हटा दिया गया था, फिर दूसरी सीट पे रख लिया गया था। तो सर इसका फिर कोई है? ये कि वाई शॉर्टकट्स, शॉर्टकट क्यों लेने हैं? जी सर। आप आप जिसके हलाल कमाने जा रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि शॉर्टकट से होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर सर्टिफिकेशन करो जो भी करनी है लेवल 3 की, ठीक है, एंड देन आपने जो है वो जाना। बिल्कुल, आप जो जिस केस की बात कर रहे हो वो बिल्कुल राइट है। तो सारे सेफ्टी ऑफिसर्स जो है उन्होंने WPR जो है
वर्क परमिट रिसीवर्स वो सारे वापस भेजे हैं। जी सर। बेसिकली यहाँ पे एक आप कह लो कि मैन पावर कंपनी है, उन्होंने ही वो सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे भेजे थे, ठीक है, जी और वो सर। एज इट इज ही कॉन्ट्रैक्टर ने वापस भेजा। जी सर ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ भी न्यू में भी ऐसे केसेस हुए हैं, उन्होंने भी उनको यहाँ से भी रिमूव किए और पाकिस्तान उनको भेजे। मैं नहीं कर देता, वापस वो नहीं जा सकते। वैसे ही है, रिपोर्ट कर दें डायरेक्ट। ओके जी, थैंक यू। गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा जिस पे टॉपिक पे होगा जी सर। इंशाल्लाह उस पे जो है ना वो हमें नेक्स्ट सेशन भी आपने इसमें इतने ही जो है ना वो मोटिवेशन के साथ अटेंड करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू आप। सर किस दिन होगा ये सर सेशन, तो काइंडली ये बता सकते हैं? पेज के ऊपर गाइड कर दिया जाएगा भाई, ठीक है, फेसबुक पेज के जी। ऊपर है ना वो सर मैं पोस्ट अनाउंस। इसलिए कह रहा था क्योंकि इन्हीं दिनों में फिर मेरा निकाह भी है ना, तो इस वजह से सर। सर सर इस वजह से सर वो अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी मैंने ये एंड पे है ना वो अटेंड किया है। तो सर वो सारी जो भी बातें हुई हैं सर वो मुझे मालूम नहीं था, तो इस वजह से। ठीक है जी, आपके निकाह के बाद हम सेशन। थैंक यू सर। ठीक है भाई, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू सर। all। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम।